Verified. Someone sent message, looks like. Aniket, I think Aniket joined or not. Aniket, not in the meeting. Okay. Maybe some people are facing internet or they need to rejoin, looks like. Please rejoin. Not in. Or maybe he's using the old one. Is use updated. All right, Aniket is in, looks like. Perfect. So I think some are confused with the link, maybe. All right, anyways, we'll continue with today's session. So today we'll pick the topic. Last time we discussed about role-based access control and understood about the role definition. So a lot of concept we have discussed about the permission or access related to the resources. Okay, and now today we are going to take the topic of networking. So I think most of you are not familiar with the networking part in basic. So we'll start with the basic to understand the concept of networking, and then we will continue with the uh, virtual network or the network which is residing on the cloud. Right. So let me begin with this. So basics of networking we'll discuss about, and here if we see the computer networking is like the the connection between multiple computers or the way to connect multiple computers on a network. When we talk about networking, basically we are talking about सर the hello sir, screen नहीं दिख sorry, the screen not screen visible. screen is not visible. It's looking like a white page. Okay, all right. Screen दिख रहा है sir. Yeah, fine, no problem. Let me see. Okay, let me just. Okay. All right. So still members are joining. It's visible now, sir. Okay. Perfect. All right. Recording started. Screen visible. Perfect. Let's go. All right. So we'll talk about the basics of networking. This is public URL. I'll share with you guys so you can go through that who are not familiar with the networking stuff. So this is really good stuff. You don't have to maintain the notes here. You can easily go here and you can view this URL. So I will look of the understand about the basics of computer networking, and the people who are not familiar with the networking part, at least they can understand about this concept. So computer networking is cornerstone of modern technology, enabling interconnected systems that power the internet. Okay, so definitely everything is interconnected, and it is either a LAN, WAN, or MAN. So these are some networking stuff which we will talk about. So
business communication, everything digital, interact, like understand the network or fundamental computer networking essential for anyone. Still members are joining, okay, from like anyone can understand. So we have to have basic knowledge of this basically, okay. So what is computer network? Computer network is collection of interconnected devices, okay, that share resources and information, right? So this is like, as we are in internet era, so everyone is familiar of this. These devices can include computer, server, printer, like we have local area network, LAN, or local area network at home or offices. So this is something which is like basic of the networking, okay. Here then, how does computer network work? So like we have modem, router, this equipment, these allow multiple devices to connect with each other, and these devices can transfer the data or information or share the information with each other. All right, so basic terminologies of computer network. So what is a network? Basically, a network is collection of computers and devices that are connected together to enable communication and data exchange, okay. So if you hear the name something like node, what does it mean? Okay, so nodes are devices. So basically, these are devices which are connected over the internet, are called nodes, or the devices connected with the network is called nodes. These can include computer, server, printer. So sometime in your in your environment where you are working in office or somewhere, they will use this word, or maybe your client would use this word. So that time you have to be familiar that what he's talking about, okay. So nodes are generally any device which is connected to that particular internet, or sorry, network. All right, so next terminology which is being used in networking is protocol. So protocol is a set of rules and standards that govern how data is transmitted over network, ठीक है. So set of rules होता है, this is called the protocol. तो इसको ये ध्यान में रखना है कि when someone ask about the protocol, what is the protocol, like TCP, IP, UDP, HTTP, so ये protocols होते हैं. तो इस like set of rules ये ध्यान रखना, और and standards, ठीक है. All right, so topology, basically the network topology refers to the physical and logical arrangement of nodes, ठीक है. Nodes हम जानते हैं, like any device which is connected to network is called node, ठीक है. Common network topologies are like bus, star, ring, mesh and tree. तो हम ज़्यादातर स्टार यूज़ करते हैं, ठीक है. सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, जो कि हमारा जैसे सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका नेटवर्क के बारे में, डेटा कैरियर जो होते हैं उनके बारे में बताया है. फिर आईपी एड्रेस क्या होता है? एन आईपी एड्रेस इज़ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर, ठीक है. हर एक जब हमारी डिवाइस हम नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, इट गेट्स रिसीव्स एन आईपी एड्रेस, ठीक है. देन डीएनएस, लाइक डोमेन नेम सर्वर, क्या होता है? सो इज लाइक प्रोटोकॉल that is used to translate human readable domain names such as like google.com हम टाइप करते हैं, तो it is pointing to some IP address, right? So उसको हम domain name system बोलते हैं, ठीक है. So this is how it connects. Then firewall, which is something it act as a firewall is like security device, आप इसको बोल सकते हैं. फिजिकल फायरवॉल्स होती है कंपनीज में, हमारे केस में हम वर्चुअल फायरवॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है. दैट इज यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक. तो हमारा एक नेटवर्क है, नेटवर्क के ऊपर हम फायरवॉल लगा सकते हैं, और फायरवॉल का काम होगा कि वो जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करना, इधर इट इज इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है. It used to protect network from unauthorized access and other security threats. अगर कोई security related issue है या कोई problem आती है, उससे protect करने के लिए basically it protects the entire network and its equipment inside the network from any external threat, ठीक है. अभी नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं वो देख लेते हैं. पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN is a network that covers small area
सच एज लाइक जो ऑफिस और होम में जो हमारा होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, टिपिकली यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन द बिल्डिंग और कैंपस। ठीक है, अभी सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो हमें यूज होती है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। इज अ नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज सिटी, कंट्री या इंटरवर्ल्ड, तो उसको हम वेन या वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और क्लाउड नेटवर्क जिसको कि हम इट्स लाइक visualize with the wide area network is they can hosted on the public और private cloud। तो cloud service provider का जो network होता है उसको हम cloud network बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है, जो ओपन सिस्टम जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी होता है, और क्लोज सिस्टम जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं होता है, टू आउटसाइड, बेसिकली आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है लाइक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होती है नेटवर्क में दो तरीके के और दूसरा होता है पीयर टू या P2P आर्किटेक्चर। ये दो तरीके की आर्किटेक्चर होती है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो अभी क्लाइंट सर्वर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क कॉमन जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें कॉमनली अभी जो यूज़ होते हैं वो राउटर्स यूज़ होते हैं। वायरलेस राउटर यू आर फेमिलियर विद बिकॉज एवरीवन इज नाउ कनेक्टेड टू वायरलेस। तो वायरलेस राउटर एंड स्विचेस, तो राउटर एंड स्विचेस आर कॉमनली यूज। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा सा हमें नॉलेज लेना होगा। ठीक है, एंड नेटवर्क टोपोलॉजी जैसा हमने देखा ऊपर, दैट वी यूज स्टार और पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अदर्स आर लाइक वी आर नॉट यूजिंग इन आवर क्लाउड एनवायरमेंट। Now, in networking, there is something called OSI model, which stands for Open Systems Interconnection Model। ये मॉडल के बेस पे ही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, it is a reference model that specifies standard for communications protocols and also the functionalities of each layer। इसमें 7 layers होती हैं, तो हर एक लेयर का कुछ अलग अलग काम होता है। द OSI हैज been developed by the International Organization for Standardization and it is 7 layer architecture। ठीक है, 7 लेयर होती है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें बेसिकली लेयर 4 और लेयर 7 पे थोड़ा सा फोकस करना है, दैट्स इट। ओके, तो लेयर 4 जो होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। बेसिकली फिजिकल लेयर जो होती है वो फिजिकल हार्डवेयर के बारे में बात करती है। बाकी की जो लेयर है वो लाइक लॉजिकल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ज़्यादा डिटेल चाहें तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली, ये डॉक्यूमेंटेशन डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, बट हमारे क्लाउड के पर्सपेक्टिव में हम लेयर 4 पे बात करेंगे, विच इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड लेयर 7 विच इज़ द एप्लीकेशन लेयर। तो ये ही दो चीज़ें हमें काम आएगी हमारे एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल, जैसा हमने ऊपर देखा, और एल्गोरिदम विच डिफाइन द वे हाउ टू एंटिटीज कैन कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क, एंड देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफाइंड एट ईच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ठीक है, अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, अ फ्यू सच जैसे कि TCP/IP हो गया, UDP हो गया, ARP हो गया, DHCP, ये कुछ कॉमन एग्जांपल इसने दिए। तो जैसे TCP हमारा मोस्ट कॉमन है, TCP/IP जिसको हम बोलते हैं, इसका काम होता है द फाउंडेशनल प्रोटोकॉल सूट्स ऑफ द इंटरनेट इनेबलिंग रिलायबल कम्युनिकेशन। तो ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन के लिए ये काम आता है, जनरली यही काम आता है हम जो हमारे एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं। कंपोनेंट क्या है? TCP इंश्योर द डेटा डिलीवरी रिलायबिलिटी। तो ये प्रोटोकॉल अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र की रिलायबिलिटी रहती है। ठीक है, देन HTTP हम जनरली यूज़ करते हैं। HTTP एंड HTTP हम जो है पोर्ट 8443 पे यूज़ करते हैं। इसका काम होता है वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखा, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से या न्यू टू टेक्नोलॉजी है, ये जो HTTP पे हम पोर्ट 80 पे मीन्स हम अनसिक्योर जो पेजेस ओपन करते हैं उनके लिए काम आता है। HTTPS नाउ डेज ऑलमोस्ट ऑल द वेबसाइट्स आर HTTPS यूजिंग HTTPS। तो इनके जो प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर होते हैं वो पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है ये, एंड ये 443 पे काम करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनका काम होता है
using or basically it's used to transmit the web pages. ठीक है. All right, so Suraj, you can mute yourself if there is any. Okay. All right, so HTTP अनसिक्योर कम्युनिकेशन रहता है. बेसिकली इसको कोई भी टेप इन कर सकता है, इसलिए इसको अनसिक्योर कम्युनिकेशन कहा जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट इनक्रिप्टेड. ये ओपन कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. और सेकेंड होता है HTTPS विच सिक्योर कम्युनिकेशन यूजिंग SSL या TLS इंक्रिप्शन को यूज करके ये होता है. इट मीन्स in the middle of traffic or in the middle of the way, no one can tap into and listen your communication. तो ये HTTPS यूज होता है, मेनली सिक्योर वेबसाइट्स के लिए यूज होता है. ठीक है. सेकेंड लाइक SMTP विच इज़ द कॉमन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि FTP हम बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है. ये मेल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है. ठीक है. इस तरीके से कुछ कॉमन ये है. DHCP जो है वो आपको IP प्रोवाइड करने के लिए, तो ये हमें इतने काम नहीं आएगा. DNS काम आएगा, हो सकता है ट्रांसलेट ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस. तो DNS या डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो प्रोटोकॉल हमें काम आता है टू ट्रांसलेट ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम, जैसे google.com हो गया, microsoft.com हो गया, है ना. इन इन नेम्स को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है. हम अगर कोई इंटरनेट एड्रेस बार में हम कोई नेम लिखते हैं और वो कोई पोर्टल है जो पॉइंट कर रहा है किसी IP एड्रेस पे, तो इस DNS सिस्टम की वजह से वो हो पाता है. ओके. ऑल राइट. सो लाइक इसने एग्जांपल बताया कि अगर हम होस्ट नेम लिखते हैं डोस प्रॉम्प्ट पे, तो वो हमारा होस्ट नेम बताता है. तो ईच डिवाइस इन नेटवर्क इज एसोसिएटेड विद द यूनिक डिवाइस नेम नोन एज होस्ट नेम. टाइप होस्ट नेम इन द कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटर मोड में अगर करते हैं और प्रेस एंटर करेंगे तो वो मशीन का नाम बताएगा. ठीक है. अभी IP एड्रेस के बारे में थोड़ा सा इसने बताया, दैट ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एड्रेस. IP एड्रेस इज द नेटवर्क एड्रेस. तो हर डिवाइस का एक तो आपका नाम हो गया, होस्ट नेम जो उसने ऊपर बताया. दूसरा हो गया नेटवर्क से अगर कनेक्टेड है तो उसको एक IP एड्रेस मिलता है. ठीक है. इट्स लाइक जस्ट एज्यूम एज अ एड्रेस, जैसे घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से योर सिस्टम गेट्स IP एड्रेस. ठीक है. अक्रॉस द नेटवर्क, बेसिकली इट इज ऑन द नेटवर्क. टू आइडेंटिफाई ईच डिवाइस इन द world wide web, means if it is public IP address then it will be used on world wide web और द इंटरनेट. ठीक है. और इसमें जो इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी जो होती है वो इसको असाइन करती है. सो बेसिकली IPv4 एंड V6 आर इन प्लेस राइट नाउ. सो V4 इज बीइंग यूज्ड जनरली. तो इसमें बताया, तो इसमें बाकी की डिटेल दी है. फिर दूसरी चीज़ होती है मैक एड्रेस, जो कि आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहलाता है, विच इज़ एसोसिएटेड विद योर नेटवर्क कार्ड इन द लैपटॉप और एनी हार्डवेयर यू आर यूजिंग. ओके. सो आपके ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ में एसोसिएट होता है, विच इज़ कॉल्ड मैक एड्रेस. ओके. तो ये आपको जस्ट टू बी फेमिलियर विद हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस. ओके. नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट. तो पोर्ट क्या होता है? इस पोर्ट कैन बी रेफर्ड टू एज अ लॉजिकल चैनल थ्रू विच डेटा कैन बी सेंट और रिसीव्ड. ठीक है. अलग अलग सर्विसेज अलग अलग या अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें जो सर्विसेज काम आती हैं वो अलग अलग पोर्ट पे काम करती है. ठीक है. तो पोर्ट कैन बी रेफर्ड एज लॉजिकल चैनल थ्रू विच डेटा कैन बी सेंट और रिसीव टू an application. Any host may have multiple applications running and each of these applications is identified using the port number on which they are running. जैसे कि अगर हम डेटाबेस सर्विस यूज़ कर रहे हैं, अगर हम IIS यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं अगर विंडोज़ एनवायरनमेंट में या किसी और एनवायरनमेंट में, तो वो डिफरेंट पोर्ट पे काम करेगी. तो वो अपना कम्युनिकेशन उस पोर्ट पे मेंटेन करेगी. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द पोर्ट इज़ अबाउट. सो पोर्ट रेंजेस इन्होंने डिफाइन किया है. ठीक है. ये पोर्टेड हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Then RP is like, this is just for your information, address resolution protocol होता है, which is when you are like shaking hand में काम आता है. ठीक है.
एंड आर जो होता है वो रिवर्स ऑफ दिस एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है इसका भी ये, बट हमें इतना काम नहीं आता है. All right, so this is like more detail. I don't think we have to. So हमने firewall के बारे में समझा, which is simply device or software that monitor and control incoming and outgoing traffic on the network. ये हमें ध्यान रखना है. Encryption क्या होता है? The process of encoding data to prevent unauthorized access. ठीक है, उसको हम encryption बोलते हैं. ठीक है, and commonly used in like VPNs और HTTP या secure mail, जो भी ट्रैफिक हमारा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, वो हमें देखना होता है. ठीक है, IDS का इतना यूज़ नहीं आएगा, बट इट्स लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम विच इज़ लाइक हाई एंड ऑफ द नेटवर्किंग पार्ट. Access control like mechanism that restrict access to network resources based on the user identity and role. तो हम वैसे भी आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारा रिसोर्स मैनेजर वो टेक केयर करता है. So that's all about the basic networking. I will just take you to some place here. कहाँ था अपना ये वाला ना? Let me see. तो हम एप्लीकेशन लेयर देख लेते हैं. इसमें दो चीज़ इसने मेंशन की थी. एक तो एप्लीकेशन लेयर विच इज़ द लेयर 7. अगर आप इसको जो लेयर में डिवाइड करें तो दिस इज लेयर 1, 2, 3 एंड दिस इज लेयर 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, so let's go where it is application layer in all. ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, देन वील कंटिन्यू विद द वर्चुअल नेटवर्क पार्ट. ओके, सो एप्लीकेशन लेयर इन OSI मॉडल क्या होता है? द एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल is the top layer in this model and takes care of network communication. ठीक है, the application layer provides the functionality to send and receive data from user. ठीक है, इसका काम होता है डेटा को सेंड एंड रिसीव करना. ठीक है, it acts as the interface between user and application. ठीक है, application provides सर्विसेज लाइक फाइल ट्रांसमिशन, मेल सर्विसेज, ये कुछ सर्विसेज हैं जो इस लेयर पे काम करती है. ठीक है, अभी हम ब्रीफली देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये समझना है कि ये लेयर 7 क्या काम आती है, दैट्स इट. ठीक है, आई थिंक दिस इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू गो. फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर देख लेते हैं. तो लेट मी जस्ट close this. All right, so the application layer is discussed above, being topmost layer. ठीक है, performs several kind of functions. ठीक है, requirement kind of application communication process. Following are the list of functions. तो list provide किया है इसने, तो ये list डिटेल में provide किया है कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन लेयर यूज़ होती है. तो इतना लिस्ट हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली आप इसको जब फ्री टाइम हो आप इजीली इसको गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स इट आई थिंक अबाउट द एप्लीकेशन लेयर. लाइक जैसे कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर आर लाइक दिस, like interface between user application. It is used for remote login. ठीक है, it is used for file transfer. ठीक है, it is used for mail services. तो ये कुछ सर्विसेज इस एप्लीकेशन लेयर पे काम आती है. ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर्स के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे टेलनेट करके एक कमांड होती है, वो इसमें एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, then let's say domain name services. ठीक है, और domain name system basically works on the application layer. DHCP works on application layer. ठीक है, FTP, this is like SMTP, HTTP. so ये कुछ protocols हैं जो कि इस पे काम करते हैं. so this is briefly about the application layer. ठीक है, next we'll talk about transport layer. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द सेकेंड लेयर इन द TCP मॉडल. तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं. वर्किंग ऑफ ओके, इट इज़ एंड टू एंड लेयर यूज टू डिलीवर मैसेज टू अ होस्ट. तो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए ये काम आती है. ठीक है, वर्किंग हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. रेस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं. द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए काम आती है. एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट के लिए काम आती है.
मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए काम आती है, कंजेशन कंट्रोल के लिए। तो ये इसके कुछ काम हैं। लेट्स सी हमारे काम का क्या है इसमें। एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट किस तरीके से जैसे ये काम कर रही है, तो इसमें कुछ डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग और उसके केस में हमें नहीं जाना है, कंजेशन कंट्रोल भी नहीं देखना है, एरर करेक्शन और ये डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है। एंड दैट्स इट अबाउट दिस, आई डोंट सी एनी अदर इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेवेंट टू अस। तो बेसिकली हमारा लेयर 4 और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर पे हमारा कुछ यूजेस होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर सब्जेक्ट। ठीक है, तो नेटवर्क में आपको हो सकता है कि काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ लोगों के लिए वो नया सब्जेक्ट होगा, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना। ठीक है, देन वील गो फॉर व्हाट इज़ इन द एज्योर। तो एज्योर में हमारे पास में किस टाइप का नेटवर्क होता है। जो नेटवर्क हम अभी तक बात कर रहे थे वो एक स्टैंडर्ड वे में बात कर रहे थे कि जनरली नेटवर्किंग कैसे होती है। ठीक है, बट एज्योर में कौन सा कंपोनेंट है जो नेटवर्किंग की टेक केयर करता है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, सो व्हाट इज़ वर्चुअल नेटवर्क। ये नेटवर्क है लेकिन ये वर्चुअली अवेलेबल है बिकॉज इट इज़ ऑन द क्लाउड। ठीक है, अभी देखते हैं एज्योर वर्चुअल नेटवर्क इज़ अ सर्विस that provides the fundamental building block for your private network in Azure। अब जैसे हम घर पे नेटवर्क बना रहे हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, या इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन अगर आप क्लाउड पे कोई नेटवर्क बना रहे हैं जो वर्चुअली अवेलेबल है, मीन्स इट इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट। ठीक है, in that case that is called a virtual network in Azure case. I think in AWS they call it VPS or something like that, so little bit naming is different but concept is same। ठीक है, an instance of the service मीन्स अगर हमारा वर्चुअल नेटवर्क की सर्विस लेते हैं हम, ठीक है, तो उसकी एक इंस्टेंस हम बना सकते हैं। हमेशा आप जो सर्विस लेते हैं वो एक कॉपी ऑफ सर्विस होती है। ठीक है, तो आपने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंस्टेंस ऑफ दिस वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, इनेबल्स मेनी टाइप ऑफ Azure resources to securely communicate with each other। तो इसका काम होता है कि ये नेटवर्क जैसा नेटवर्क बन जाएगा, जैसे हमारे ऑफिसेज में या घरों में जो नेटवर्क होता है उसी तरीके से ये नेटवर्क बन जाएगा और उस पर आपके मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगी। and it will help you to communicate with the internet on premises network। so these Azure resources include like virtual machines। जनरली आपका जो नेटवर्क या वर्चुअल नेटवर्क होता है उसके अंदर वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल नेटवर्क। जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसी तरीके से वर्चुअल नेटवर्क होता है और वो ही काम करता है जो लोकल एरिया नेटवर्क कर रहा होता है, बट दैट इज डूइंग इट ऑन द क्लाउड, दैट्स ओनली डिफरेंस। ठीक है, जैसे हमारे डेटा सेंटर या हमारे घरों पे जैसे काम आता है वैसे ही ये काम आता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसने इंट्रोडक्शन दिया है वो आप देख सकते हैं। तो आई जस्ट प्ले विदाउट वॉल्यूम, लेट्स सी, will it load, I'm not sure, लोडिंग। तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया है सिंपली, जैसे कि ये वाइड एरिया के बारे में बताया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, बट लुक्स लाइक सम इंटरनेट स्लोनेस। ओके, सो एज्योर वर्चुअल नेटवर्क जो होता है वो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए काम आता है बेसिकली। ओके, so this is what is like, you can see the network is just helping to communicate between or establish the communication between the resources। okay, so this is what exactly it is saying, and let's see, then you can send the request from one virtual machine to another virtual machine and you can receive the response। so this is being used for that purpose। ओके, एंड वर्चुअल नेटवर्क को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सबनेट्स के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अलग अलग सबनेट में अलग अलग वर्चुअल मशीन्स को आप रख सकते हैं ऑन डिफरेंट सबनेट। सबनेट इज बेसिकली सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क।
ठीक है, नेटवर्क को हम सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आईपी रेंजेस हमें मिल जाएगी। तो जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है यहाँ पे दिखाया है वो हो सकता है एक सबनेट में अलाउ हो और वो सबनेट से दूसरे सबनेट में आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, और सेम वे द वर्चुअल नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड विद योर ऑफिस नेटवर्क एज वेल। ठीक है, एक्सप्रेस राउट यूज़ कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं एज्योर में जिनको यूज़ करके आप आपके ऑफिस के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वर्चुअल नेटवर्क को आप अलग अलग सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन पे अलग अलग पॉलिसीज आप अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग सबनेट का अलग अलग काम हो जाएगा बेसिकली। ओके, so this is briefly about this one and why use an Azure virtual network। तो हमें क्यों यूज़ करना है, तो इसका कम्युनिकेशन के लिए रिसोर्सेज में अलग अलग रिसोर्स में अलग अलग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज कम्युनिकेशन बिटवीन एज्योर रिसोर्सेज हियर इंटरनेट से बेसिकली रिसोर्स एंड इंटरनेट मीन्स आपका वर्चुअल मशीन आपने बनाया है वो आपके इंटरनेट से बात कर सके उसके लिए आप नेटवर्क बनाएंगे, उसमें आप पॉलिसी सेट करेंगे कौन से पोर्ट पे क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है वो आप रूल्स सेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन विद ऑन प्रीमाइसेस। अगर आपका हाइब्रिड एनवायरनमेंट है, आपका एज्योर और आपका ऑफिस कनेक्टेड है, तो वो भी आप उसके यूजिंग द वर्चुअल नेटवर्क यू कैन एस्टेब्लिश। नेक्स्ट इज आप इससे वर्चुअल नेटवर्क को यूज करके आप नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं, उसको राउट कर सकते हैं, अलग अलग राउटिंग आप पॉलिसी सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। एंड इंटीग्रेशन विद एज्योर सर्विसेज, अलग अलग जो एज्योर सर्विसेज है जैसे डेटाबेस सर्विस हो गई, आपकी स्टोरेज सर्विस हो गई, इन सर्विसेज के साथ में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क को। ठीक है, कम्युनिकेट विद द इंटरनेट, तो ये कुछ इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए सर्विसेज हैं जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया, नेटवर्क नेट गेटवे हो गया, पब्लिक लोड बैलेंसर हो गया। तो ये कुछ सर्विसेज हैं, हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे एज वी गो ऑन। ठीक है, ऑल राइट। सो कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं इसमें जैसे कि नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क पीयरिंग क्या होता है। तो ये कुछ एडवांस टॉपिक है जिनको हम एज वी गो थ्रू विल यूज देम एंड अंडरस्टैंड अबाउट देम। like we can also use with the virtual network the virtual private network and site to site VPN as well। so ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वन विच इज़ लाइक विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर वी कैन यूज़ एज्योर एक्सप्रेस राउट। ठीक है, ऑल राइट, दैट्स मोर देन इनफ एक्चुअली टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क एंड दिस थिंग। सो इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। देर इज़ नो चार्ज। तो इसमें आपको जैसे कि हमारा मोस्टली कंसर्न होता है कि हम एज्योर पे कुछ बनाएंगे, ऐसा नहीं तो बिल बन जाएगा अच्छा खासा। तो ये वर्चुअल नेटवर्क आप बनाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बना के रख सकते हैं इसको फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस पे कोई चार्जेस नहीं, देर इज़ नो चार्ज फॉर यूजिंग एज्योर वर्चुअल नेटवर्क, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्जेस अप्लाई फॉर रिसोर्सेज। तो अगर इसमें कोई रिसोर्स बनाएंगे आप उसके चार्जेस लगेंगे, नेटवर्क का कोई चार्ज नहीं लगेगा, सच एज वर्चुअल मशीन एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क की कोई प्राइसिंग नहीं है एज ऑफ हियर। लेट्स सी अगर कोई प्राइस निकल के आती है। एक्सप्लोर प्राइसिंग, चलो दिखाओ यहाँ पे, लेट्स सी। वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग का चार्ज है। तो ये वर्चुअल नेटवर्क से वर्चुअल नेटवर्क के अगर आप बीच में ये पियरिंग आप सेट करते हैं तो उस केस में आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र पे पैसा लगेगा। बाकी एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ग्लोबल पेयरिंग कर रहे हैं तो आपको ये चार्जेस लगेंगे अलग अलग जोन के हिसाब से, एंड दैट्स इट। या इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है आपको इंटरनल। अगर आप मीन्स आपका वर्चुअल नेटवर्क बना के आप रखते हैं तो कोई भी कॉस्ट उस पर नहीं आने वाली है। ओके, व्हाट एल्स वी हैव। ओके फाइन, ठीक है, काफ़ी है इतना। हम जाते हैं हमारे पोर्टल पे, और उससे पहले अगर आई एम नॉट श्योर इफ समवन वांट्स टू, तो नेटवर्क आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है, एनीवन इज हैविंग एनीथिंग बिफोर आई मूव अहेड आई कैन टेक इट।
सर जैसे अभी आप थियोरेटिकली नेटवर्क का कंसेप्ट बताए, तो हाँ उसका जी। कुछ ऐसा वीडियो वगैरह होगा तो मतलब वो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैकेनिकल का है, तो मेरे को ये ओके। सारी चीजें थोड़ा सा मतलब मैं हाँ, मैं आपको लर्न ये नहीं देता करूंगा। हूँ। हाँ राइट, हाँ। वीडियोस चाहिए ना आपको इसके, इससे हाँ रिलेटेड, राइट? वीडियोस अगर इससे मिलेंगे तो वो एग्जैक्टली समझ आएगा कि ये किसके साथ रिलेट हो रहा है, क्योंकि राइट, थियोरेटिकली राइट। समझ नहीं आएगा सारी चीजें। ठीक है, आई अंडरस्टूड दैट। आई विल शेयर द वीडियोस विद यू, जो आपको कॉन्सेप्चुअली आपको ड्राइव करेंगे कि आप ये सारा इंफॉर्मेशन को आप समझ पाएँ, ठीक है? हाँ यस यस। मैं आपको करूँ, ठीक है, श्योर, आई विल शेयर दिस वीडियोस विद यू गाइस, नो प्रॉब्लम। ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालता हूँ ये वीडियोस इससे रिलेटेड, और ये लिंक्स भी मैं शेयर करूँगा ताकि आप इसको गो थ्रू करके समझ पाएँ, ठीक है? ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितना चाहिए उतना हमें समझना है। तो मैं आपको वैसे भी अभी प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, तो इसमें आपको बहुत कुछ तो समझ आ जाना है, ठीक है? ऑलराइट, तो हम लेट्स वी आर ऑन आवर एज्योर पोर्टल बेसिकली। एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। मेरे पास में बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप बन गए। तो रिसोर्स ग्रुप हमने देखा था कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा था। तो हम बेसिकली रिसोर्स ग्रुप लॉजिकल कंटेनर है, इसके अंदर कुछ बना के देखेंगे। तो लेट मी जस्ट मेक इट स्मॉल एंड कौन से वाले में बनाए? मनोवन, चलो एक नए बना लेते हैं जो सेंट्रल इंडिया में बनाते हैं। ये डेमो वाला हमने बनाया था, पता नहीं इसमें कुछ नहीं है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना बहुत आसान है। वेयर इट इज, लेट्स गो टू रिसोर्स ग्रुप एंड क्लिक ऑन डिलीट रिसोर्स ग्रुप। कॉपी दिस एंड पुट इट हियर। ऐसे करके आप रिसोर्स ग्रुप का भी कोई कॉस्ट नहीं है, आप बना के रख सकते हैं। खाली है तो कोई कॉस्ट नहीं, रिसोर्स का कॉस्ट लगेगा। ओके, तो मैं रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी रिमेनिंग। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन इन केस। ठीक है, डेटाब्रिक्स डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप, आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट इट इज क्रिएटेड, तो इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप इज नॉट अ प्रॉब्लम। और आपको लॉक के बारे में मैंने पढ़ाया था, राइट? तो लॉक आप लगा सकते हैं अगर आपका कोई क्रिटिकल रिसोर्स ग्रुप है, अगर गलती से डिलीट हो गया तो उसके लिए। ठीक है, हाँ, लेट्स गो हियर। सो वी हैव लाइक, ओके, आरजी डेवऑप्स ईस्ट यूएस में है, ये भी चलेगा वैसे। ओके, तो हम ये ले लेते हैं। इसमें एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं, तो विल जस्ट क्लिक ऑन प्लस क्रिएट, एंड यहाँ हम बोलेंगे इसको हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाना, वर्चुअल नेटवर्क। ओके, अब हम ये वाला देखेंगे। दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, और आपको अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड सर्विस ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सर्विसेज आपको अलग अलग प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं सेलेक्ट करते हैं, हालांकि आएंगी सब पहले माइक्रोसॉफ्ट की आएंगी, बट जैसे चेक पॉइंट का हो गया, आपको कोई और प्रोवाइडर में मिल जाएगा, जैसे ये मुशरू ब्रा या ऐसे कुछ अलग अलग नाम हैं इनके, फोर स्काउट, पता नहीं, अलग अलग ये सर्विसेज हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज हैं। तो ये आपको हो सकता है मिल जाए। ठीक है, सो यू कैन जस्ट टू सी द एज्योर सर्विसेज ओनली, यू कैन क्लिक दिस वन। ओके, एंड यू कैन क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क। सर ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, सबका पैसा लगेगा आपको। सो ओनली वर्चुअल नेटवर्क इज फ्री। नेटवर्क सिक्योरिटी वो भी फ्री था ना सर, नेटवर्क सिक्योरिटी? हाँ, नेटवर्क सिक्योरिटी वो भी फ्री था, लेकिन उसमें अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो सबसे बढ़िया रिसोर्स आपको रहता है एज्योर कॉस्ट कैलकुलेटर। एक बार कोई भी रिसोर्स आप बनाएं तो ये प्रैक्टिस जरूर रखें
कि उसको देख लें। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो आ ही नहीं रहा इधर, एनएसजी, आई थिंक वो फ्री होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी, बिकॉज फायरवॉल बहुत कॉस्टली है। आपको एज्योर फायरवॉल का आपको बताया था ना, आई थिंक पहले बताया था मैंने, इट्स रियली वेरी कॉस्टली। तो ये आपको केयर ध्यान रखना है कि ऐसी कोई सर्विस बना के छोड़ने दे, नहीं तो ये एक ही रात में शायद $150 तो बना ही लेगा इजीली। ये इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव। तो ये इस टाइप की सर्विसेज जो होती हैं वो काफ़ी सर प्रॉब्लमेटिक अभी होती है। जैसे आप यहाँ पे ये क्लिक का काम ऑपरेशन कर रहे हो, तो हम्म, हमें कैसे पता चलेगा कि सर्विस एक्टिव हो गई है? सॉरी, कैसे पता चलेगा? मतलब आपने अभी जब उस सर्विस पे क्लिक किया, तो हाँ, वो एक्टिव हुआ या नहीं, कैसे पता नहीं चलेगा? नहीं, ये एक्टिव नहीं, ये कैलकुलेटर है। नहीं नहीं, यहाँ पे आज़ूर फॉरवॉल पे आपने क्लिक किया ना नीचे, वो कैलकुलेट करने के लिए ये क्या सर? फायरवॉल, हाँ, ये कैलकुलेट करने के लिए। ओके ओके। दिस इज जस्ट टू कैलकुलेट, नॉट कॉस्टिंग अस, नॉट चार्जिंग अस। ठीक है, ये है, हम एज्योर पे यहाँ पे थे हम, ये हमारा एज्योर पोर्टल है, ये हमारा प्राइसिंग कैलकुलेटर है जो कि फ्री है। हाँ, प्राइसिंग कैलकुलेटर है, इस पे कोई कॉस्ट नहीं है। आप इसमें किसी भी चीज़ की, जैसे कि मुझे वर्चुअल मशीन के कॉस्ट जानना है, ठीक है, वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल मशीन पे जाओ, इस सर्विस पे क्लिक करो, ये कैलकुलेटर है जो आपको एस्टिमेट देगा। लेट इट लोड। तो ये तो आपका सेवियर है एक तरीके से, ये आपको बताएगा कि कहाँ पे कितनी कॉस्ट आनी है। ओके। तो जैसे यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन में अलग अलग वर्चुअल मशीन होती है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो सारा कुछ होता है। तो उसमें आपकी एस्टिमेट कॉस्ट बता देगा ये, कि अगर आप पे एज यू गो वाले प्लान में जाते हैं तो लगभग 137 पर मंथ कॉस्ट आएगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर रिसोर्स की कॉस्ट आती है, आई थिंक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री रहेगा, यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा। अगर है तो यहाँ पे लिस्ट जरूर होगा वो। ठीक है, इसी तरीके से आपके जैसे वर्चुअल नेटवर्क, लेट्स सी, वर्चुअल नेटवर्क है यहाँ पे। ठीक है, इसका देख लेते हैं। अगर वर्चुअल नेटवर्क की कॉस्ट हम देखना चाहते हैं तो लगभग मंथली $4 कॉस्ट आ रही है, लेकिन किस केस में, वो यूएस रीजन में है। ठीक है, और अगर उसमें वीनेट पेयरिंग वगैरह कुछ है तो डेटा ट्रांसफर कॉस्ट वगैरह आएगी ये वाली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है कि किस चीज़ की कॉस्ट है, वो कौन से फंक्शन की कॉस्ट है। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, कितना लिमिट है उसका, तो 100 GB आपके लैब के लिए तो इतना कुछ यूज़ ही नहीं होना है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है कि कहाँ पे कितना है, और आपको कितनी देर के लिए चाहिए। अगर आप कोई प्रैक्टिस करते हैं तो मे बी यू कैन क्रिएट इट फॉर मे बी 1 आवर 2 आवर, इतना कुछ रखेंगे आप, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको जितनी देर प्रैक्टिस करना है, कीप प्रैक्टिस दैट यू क्रिएट द रिसोर्स एंड यू कैन डिलीट आफ्टर योर प्रैक्टिस। तो पर मिनट बेसिस पे चार्जेस है इसमें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच जाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल नेटवर्क। सो कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका, रिसोर्स ग्रुप में जाओ और वहाँ से कर सकते हैं। एंड तीसरा तरीका आई थिंक यहाँ से भी कर सकते हैं। लेट मी सी, वर्चुअल नेटवर्क, तो यहाँ पे जाएंगे तो वो जो भी सर्विस है वो पिक करो, और यहाँ पे जैसे एक बना हुआ है मेरे पास, मैं इस वाले रिसोर्स ग्रुप के अंदर, बट मैं यहाँ प्लस क्रिएट पे करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क वाले पेज पे ले जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे, लेट मी मेक इट लिटिल बिग, तो बेसिक्स में ये मुझे थोड़ा वर्चुअल नेटवर्क की जानकारी देगा, और यहाँ से लर्न मोर का लिंक भी देगा। कि अगर मुझे वर्चुअल नेटवर्क के बारे में जानना है तो मैं यहाँ से उसको अलग टैब में ओपन करके, वही पेज खुलेगा जिस पे, आई थिंक ना, इसमें ये लर्न वाला पेज नहीं खोला इसने, ये वर्चुअल नेटवर्क के बारे में थोड़ा बताएगा यहाँ पे, बस दैट्स इट। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेटिव लाइक पेजेस है, और उसके बारे में अगर आपको जानना है, लर्न मोर अबाउट द वर्चुअल नेटवर्क प्राइसिंग, तो ये प्राइसिंग पेज पे लेके जाएगा आपको शायद, यस, हियर। ठीक है, इस तरीके से आप लिंक जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से। ठीक है,
फिर आप जब इसको इसी बेसिक में पेज में आप देखेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि कौन से रिसोर्स ग्रुप में डालना है इसको। अगर आप रिसोर्स ग्रुप से जाएंगे तो ये प्री फिल्ड आएगा। अगर आपके पास रिसोर्स ग्रुप नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला कर रहे थे, REG डेवॉप्स वाला कर रहे थे, RG डेवॉप्स वाला, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं हम। देन इट विल आस्क दैट इंस्टेंस डिटेल, कहाँ पे आपको ये इंस्टेंस की डिटेल क्या है, तो वर्चुअल नेटवर्क का आपको नाम देना होगा। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप चाहें, ठीक है, लेकिन जनरली इसको माइक्रोसॉफ्ट के पर्सपेक्टिव में इसको वीनेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो भी नाम देना चाहें, जैसे कि अगर आपका क्लाइंट के नाम से वीनेट फॉर क्लाइंट 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपके प्रोजेक्ट के नाम पे तो प्रोजेक्ट 1, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें यू आर फ्री टू गिव द नेम, ठीक है। देन कहाँ पे आपको डिप्लॉय करना है, कौन से रीजन में आपको अप्लाई करना है या कहाँ पे आपको ये बनाना है, ठीक है। तो हम इंडिया में ही बना लेते हैं, हमारा इंडिया किधर गया, यहाँ से सर्च करते हैं और इंडिया लिखते हैं। सो इंडिया में हमारे पास में साउथ है, वेस्ट है, सेंट्रल इंडिया में चलते हैं, सेंट्रल इंडिया वाले डेटा सेंटर में बना देंगे। क्लिक नेक्स्ट। फिर हमारे पास में सेकंड पेज पे ये ऑप्शन पूछेगा कि आपको वर्चुअल नेटवर्क का इंक्रिप्शन रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। अगर इंक्रिप्ट करना है इसको तो इनेबल वर्चुअल नेटवर्क इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट ट्रैफिक ट्रैवलिंग विद इन द वर्चुअल नेटवर्क। तो अगर आपको ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपके वर्चुअल नेटवर्क के अंदर भी आपको सिक्योरिटी का थ्रेट महसूस हो रहा है, तो आप ये करना है। तो ये इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है वैसे नॉर्मल वे में, बट अगर आपका जैसे कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काम है या ऐसा कुछ है, तो उस केस में ज़रूर ये हो सकता है रिकमेंडेशन में आ जाए। बाकी ये आपको नॉर्मली जो इंटरनल ट्रैफिक है उसको इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें आपको ये ज़रूर देखना है कि एज्योर में अगर आप कोई भी सर्विस इनेबल करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा अगर ये इंक्रिप्शन में ऐड करता हूँ, तो हो सकता है इसकी कुछ कॉस्ट हो, ठीक है ना। तो कोई भी अगर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं है या ऐसी कोई एडिशनल सर्विस आपको लगती है बाय नेचर कि इंक्रिप्शन इसका कोई चार्ज तो नहीं है, वो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो हर एक चीज़ में हर एक जो टिक बॉक्स है जिसमें कोई एडिशनल सर्विस आपको ऑफर की जा रही है, आपको यू हैव टू मेक श्योर कि उससे रिलेटेड कोई चार्जेस तो नहीं है। बेसिकली दिस इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द कंपनी एंड यू आर क्रिएटिंग एनी रिसोर्स फॉर द कंपनी, ठीक है, क्योंकि उस केस में काफ़ी हो सकता है इसका कोई चार्जेस हों जो इंटरनल कम्युनिकेशन पे लगता हो, तो वो आपको मेक श्योर करना है। सेकेंड इज एज्योर बास्टियन। एज्योर बास्टियन इनका रिमोट कनेक्टिविटी का एक सर्विस है। Azure Bastion is a paid service that provides the secure RDP and SSH connectivity, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हमें अगर ये भी इनेबल करेंगे तो इसकी भी कॉस्टिंग होगी। तो कोई भी सर्विस इनेबल नहीं करनी है, जो डिफ़ॉल्ट मिल रहा है वो यूज़ करना है। अगर एज्योर फायरवॉल, जैसे कि एज्योर फायरवॉल अगर मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा तो जो $900 कुछ बता रहा था ना, वैसा कुछ अपने को यहाँ पे लग जाएगा। तो ये इनेबल नहीं करनी है, वर्चुअल नेटवर्क फ्री है आपका, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि वर्चुअल नेटवर्क बना रहे हैं तो वर्चुअल नेटवर्क की बाकी सब सर्विसेज नहीं टिक करनी है। जैसे डीडोस, ये बहुत कॉस्टली, आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी कॉस्टली। कहाँ पे गया अपना कैलकुलेटर ये भी शायद $2000 ऐसा कुछ था शायद, लेट मी सी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव, गलती से भी इनेबल मत करना इसको। लेट मी डिलीट दिस। तो कैलकुलेटर हमारा फ्रेंड है, वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करना कि कौन सी सर्विस की क्या कॉस्ट है। क्या हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ओके, सर्विस ही लोड नहीं हुई लग रहा। एनीवेज, डीडोस 2000 कुछ था ना, डीडोस 2900 मीन्स $100 रोज के दे देगा आपको ये,
No, so it's very expensive service, right? Okay, so you have to be careful, you don't have to enable this. So ऐसी कोई हाई एंड वाली सर्विसेज हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलती से आपने इनेबल कर दी तो इसके कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नाउ वील गो फॉर द सिक्योरिटी में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमने कुछ भी टिक नहीं किया। बेसिक में हमने नाम एड्रेस वगैरह डाला है तो कोई ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द आईपी एड्रेसेस, जो हमने स्टडी किया था लोकल एरिया के बारे में वगैरह, ये यहाँ पे काम आएगा। तो IP4 IP6 सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसके लिए। तो अभी यहाँ पे ये जो पेज देख रहे हैं इसको एड्रेस स्पेस बना के देगा। हर एक नेटवर्क एक एड्रेस स्पेस पे काम करता है और यहाँ पे आईपीज काम आती है। ठीक है, आईपीज की अलग अलग रेंज होती है। ये एक क्लास बोला जाता है इसको 10.0.0.0। तो इससे आप 65,536 एड्रेसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, आप जिसे इसको चेंज करेंगे इसकी एड्रेस रेंज भी चेंज होती जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे 24 पे गए तो 256 एड्रेस मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अगर मैं 23 करता हूँ तो 510, तो उसके डबल हो गए। देखो 24 पे गया था, जैसे लेट्स गो बिलो दैट 29। अगर 29 पे गया तो हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं करा, बट 8 एड्रेस ही मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर मैं 28 पे जाऊँगा तो 16 हो गए, 8 का डबल हो गया। फिर 27 पे गया तो 32 हो गए, 26 पे गया तो 64 एड्रेस। मुझे कितने एड्रेसेस चाहिए उस हिसाब से मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक अगर मैं 25 पे जाता हूँ तो उसका डबल, देन 24 उसका डबल। ठीक है, तो ये आपको एड्रेस रेंज दे रहा है कि इतने एड्रेसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ 512 बता रहा है, तो एड्रेस जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, 10.0.0.0 और 10 डॉट मीन्स 0 डॉट लास्ट में 4 तक आपके रिजर्व रहेंगे आईपीस, उसके ऊपर आपके एड्रेसेस बनेंगे। ठीक है, तो 10.0.1.255 तक आपके एड्रेसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये रेंज बनती है। मीन्स अगर मैं इसको जैसे 24 सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे 10.0.0.255 हो गया। ठीक है, मतलब कि आपको सिंपली मैं पीपीटी पे बता देता हूँ। लेट मी, तो अगर हम हाँ जी, सर इसमें प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी भी बता दो ना एक बार, कैसा क्रिएट कर दे, क्योंकि हाँ वो मैं आगे बताऊंगा। पहले हम नेटवर्क के बारे में समझ लेते हैं, फिर आईपीस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके ओके, सो पहले हम नेटवर्क का देख लेते हैं, क्योंकि आज बहुत सारा टाइम हमारा नेटवर्क रिलेटेड कॉन्सेप्ट में ही चला गया। ठीक है, तो हम पहले नेटवर्क समझेंगे तो आईपीस के बारे में आगे इजी हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, ओके। और सर वो सबनेट का भी आप आगे लेने वाले हो क्या? सबनेट कैसे हाँ क्रिएट हाँ करते हो? इसमें पूरा इसी में आएगा। सबनेट का भी हम आगे समझेंगे। पहले एड्रेस रेंज का समझ लेते हैं, एड्रेस रेंज क्या बोल रही है। ठीक है, तो ओके इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ठीक है, 10.0.0.0। इसमें भी एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ जी, जैसे 24 की 24 यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने, हाँ लेकिन हाँ 27 जब सेलेक्ट किया तब ये रेड क्रॉस आ रहा था ऊपर, तो वो हाँ, एक्सेसिबल नहीं है क्या? नहीं एक्चुअली वो यहाँ पे आ रहा है, रेड क्रॉस जो तो हमारा आ रहा है वो मतलब कुछ डिफॉल्ट इशू है हमने क्या? जो सबनेट बनाया है वहाँ पे दिख रहा है। मिनिमम जो सबनेट हमने बना रखा है, अगर हम इसको डिलीट करते हैं, आई थिंक इट्स गॉन हियर, सी। ओके ओके ओके। ठीक है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आई थिंक या 29 तक सपोर्ट करेगा, जिसमें 8 एड्रेस मिल रहे हैं हमको। सर ठीक, 5 एड्रेस तो रिजर्व रहते हैं ना इसमें, इसलिए हाँ तो उसके उससे कम नहीं कर सकते 29 में से। एग्जैक्टली ठीक है, तो हालांकि इतना कम करने की ज़रूरत नहीं है। हम जनरली हम जो बनाते हैं वो 16 ही यूज़ करते हैं 65,000 के लिए। बट अगर कहीं एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे नेटवर्क को केयरफुली डिज़ाइन करना है, तो हम लोग जितना चाहिए उतना हम बना सकते हैं। 5 एड्रेसेस जैसे कि मोहम्मद ने बताया उस वो हमारे रिजर्व रहते हैं। ठीक है, तो 1 to 4 जैसे कि हम 10.0.0.0 से स्टार्ट करते हैं और 025 तक जाते हैं। जैसे कि आपको सिंपली मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर 10.0.0.0 से जाते हैं 10.0.0.0.255 तक। ठीक है,
तो बेसिकली आप टेक्निकली देखते हैं यहाँ से 0 से 255 तक, मतलब कि आपके पास में कितने नंबर हो गए, अगर ये लास्ट वाले नंबर देखते हैं हम, ठीक है, तो ये आपके नेटवर्क हो गए और ये आपके होस्ट हो गए। बेसिकली ये वाला जो नंबर है लास्ट वाला होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो 0 से स्टार्ट होके 255 तक जा रहा है, तो इस वो हो गया 256 होस्ट। इसमें कुछ रिजर्व हो जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे इसमें से 5, तो बचे आपके 251 यूजेबल, ठीक है। तो यूजेबल कितने हैं आप इसमें, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये वर्चुअल नेटवर्क बनाए, ये जैसे कि ये आप इसको मान लो नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका नेटवर्क है, इसके अंदर ये आप जो वर्चुअल मशीन बना रहे हैं ये आप 251 वर्चुअल मशीन तक बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि आप इतने एड्रेसेस को ये वर्चुअल नेटवर्क सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इतने एड्रेस हम यूज कर सकते हैं अगर हम कौन सा नंबर यूज करते हैं, 24, राइट। तो इसमें हम अगर 24 यूज करते हैं तो हम 256 -5 को यूज कर सकते हैं, इतने एड्रेसेस हम बना सकते हैं। अगर मैं एक नंबर इससे ऊपर जाता हूँ 23 पे, तो इसके जस्ट डबल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये जो नंबर है एक से एक ऊपर डबल होते होते जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक 512 बना सकता हूँ। तो आप फिर देखेंगे कि यहाँ 512 कैसे बना सकते हैं, तो आपकी होस्ट रेंज बढ़ गई है यहाँ पे। अभी जैसे इसको कंपेयर करते हैं, लेट्स गो बैक टू और हियर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करता तो ज़्यादा ठीक रहता, बट लेट्स इरेज एवरीथिंग एंड क्रिएट अगेन। तो इसको सिंपली इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। हो सकता है मेरा बोर्ड सही नहीं है। ओके, 10.0.0.0 से 10.0.0.255 तक की रेंज है एक। तो दूसरी रेंज हम सेलेक्ट कर रहे हैं इधर 10.0.0.0 10.0.1.255 तक, ठीक है। ये रेंज हम, तो इसमें क्या हो रहा है, हमें होस्ट रेंज जो मिल रही है ये वाली मिल रही है, ये है हमारे होस्ट के लिए, या आप इसको नोड भी बोल सकते हैं, इतने नोड बना सकते हैं, ठीक है, या इतने वर्चुअल मशीन बना सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। यहाँ पे हमें जो रेंज मिल रही है वो सिर्फ एक वाली, ये 3 डिजिट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और ये 1 डिजिट होस्ट के लिए या वर्चुअल मशीन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 0 से 255 तक, ठीक है, मतलब कि 256 नंबर हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें मिल रहा है 0 से लेके 255 तक, ठीक है। और फिर ये वाला जो 1 है हमारा, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये मिल रहा है 1 से लेके 255 तक। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो गया 512, ठीक है। इस तरीके से आपका नंबर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा आपका। तो 512 का डबल हो जाएगा, इस तरीके से 3 है तो और डबल हो जाएगा, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। तो ये आपका नेटवर्क रेंज है। इतना नॉलेज हमारे इस नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है कि नेटवर्क रेंज कैसे काम कर रही है और कौन सी रेंज हमें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग जनरली इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज गिवन 16। तो 16 में क्या हो गया, ये गया आपका 255 तक, देखो तो कितने हो गए 65,000, ठीक है, क्योंकि ये 255 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा, और इस तरीके से आपका टोटल सम करेंगे तो 65,536 एड्रेस बन जाएंगे आपके। जैसे हमने 1 में देखा था कि 24 या 24 में देखा था 256 आ रहे हैं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा और 255 पे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम इसको 23 करते हैं तो 512, बिकॉज
0 से स्टार्ट होगा 255 तक जाएगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा 255 तक जाएगा। ठीक है, अगर हम और ज़्यादा करेंगे तो यहाँ देखो 3 हो गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वाला रेंज, फिर 1 वाला रेंज, फिर 2 वाला रेंज, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके नेटवर्क एड्रेस मिलते जाएंगे। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ओके, नाउ एनी क्वेश्चन यू हैव? किसी को कोई चीज़? तो मैं आपको ये सारे लिंक शेयर करूँगा जिसमें आप थोड़ी बेसिक क्लियर करना, और मैं कोई वीडियो इसमें देखता हूँ जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप नेटवर्किंग थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। आईपी क्या होता है, आईपी रेंज कैसे होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, नोड क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है ना। ज़्यादातर तो वैसे रिटर्न में हमने आपको समझाया है, लेकिन अगर आप कोई ट्यूटोरियल देख के या थोड़ा और कुछ देख के आप समझना चाहें, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। ठीक है, alright, so today we'll conclude on this here, and tomorrow we'll continue with the subnets here, and we'll create a virtual network. All right, thank you everyone. So others can maybe leave the class, and I'll just discuss with the Suraj regarding his problem. All right, I'll stop the recording from here. Stop recording.